Hello everyone, welcome back to our Programmatics Institute YouTube channel. After a lot of requests from diploma engineering students, we are coming up with today's video. जैसे आप सबको पता है कि इंजीनियर बनने के दो रास्ते होते हैं. One is through 11-12 science as well as competitive exams, and another is through diploma engineering. Okay, so बहुत सारे डिप्लोमा के बच्चों ने बोला कि सर आप 11-12 की तो वीडियोस बना रहे हैं, बट हमारे लिए कब बनाओगे? So today we are lucky to have a versatile, highly talented topper with us, Mr. Soham Dave. Okay, welcome Soham. Thank you, sir. So talking about Soham's achievements, एक बहुत बड़ी list है. Okay, he has got 94% in his diploma final year. Talking about his extracurricular activities, he has worked as a project manager at Three Forks Media. He is doing his internship at Dot Syndicate. He has won national level hackathons, okay, and that too multiple times. He has worked in Crime Patrol, worked in a lot of serials in Sony, Sub, Life OK, Colors. Okay, so we have an actor with us today. About his other achievements, he has done a play on Amazon Prime named Akkal Badi Ke Cash. Okay, and he has also worked in ads, serials, theaters, and his latest stint in Disney was Best of Luck Nikki. So we are very proud and privileged to have Mr. Soham Dave today, and he has been one of the finest students we have come across. So thank you Soham. Thank you so much, sir, for bringing me. Thank you. So Soham, देखो बहुत सारे डिप्लोमा के बच्चे पूछते हैं कि सर डिप्लोमा का जो 3 साल का एक्सपीरियंस है उसको आप हमको थोड़ी सी चीजों में बताओ. तो that's why we are scheduling this interview today. Yes. So कुछ questions है जो हमारे डिप्लोमा के बच्चों ने पूछे हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं. Sure. Sure. So आप अपनी तरह से आप उनको मोटिवेट करिए, इंस्पायर करिए, इंफॉर्मेशन दीजिए. ओके? Sure, sir. सो पहला सवाल जो हमको डिप्लोमा के बच्चों ने पूछा है, सर जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैन यू गिव योर ऑडियंस, द डिप्लोमा ऑडियंस, अ बेसिक आइडिया अबाउट स्टडीज इन डिप्लोमा, एंड बिकॉज काफी टेक्निकल होता है, तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम 11-12 साइंस और से अदर फील्ड्स? Right. Yeah. Okay. So starting out with since if you are watching this video, तुम लोग को पता होगा कि डिप्लोमा है क्या exactly. So it is like a pre-engineering course which you do just after your 10th. So talking about the technical subjects, उसमें तुम लोग को engineering environment मिलता है at an very early stage. So you get an exposure to the core subjects of engineering. Yes. That is, if you are into computer science or any other stream, you have all the subject that you will study in degree in diploma itself. So you have time to explore various other domains as well. And if you like any one particular subject, you can go deep into this subject. Correct. So diploma has this major advantage, that is you have 2 years of time for you to look into your own career. ग्रेट ग्रेट वंडरफुल. सो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का छोटा भाई है, सो आपको पूरा टेस्ट मिलेगा इंजीनियरिंग का ऑन अ ईजियर लेवल. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि सर डिप्लोमा में तो ऐसा होता है ना कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में मजे करो और थर्ड ईयर में पढ़ाई करो, तो कैन यू एडुकेट आवर ऑडियंस कि फर्स्ट ईयर का जो स्कोर है कितना इंपॉर्टेंट है वो बच्चों के लिए? राइट. तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है ऑलमोस्ट इन ऑल स्टूडेंट्स की फाइनल ईयर में पढ़ा, परसेंटेज है, एडमिशन मिल गया. बट दैट्स नॉट द केस विद डिप्लोमा इफ यू आर सीरियस टुवर्ड्स इंजीनियरिंग, बिकॉज जो कोर सब्जेक्ट्स तुम लोग को होंगे वो एंटायर थ्रू आउट योर करियर तुम लोग को काम आएंगे. एब्सोल्युटली. सो इफ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर, दैट इज जस्ट out of your school, out of your 10th, you have a very long summer break. Yes. Before diploma, and you get admissions in the month of August if I'm not wrong. Yes. And in the month of November or December you have your first semester exam. Yes, correct. So you have a lot of exams and internals, practicals, vivas, orals, everything to be done in only a span of 3 months. So you don't have time to transit from school to college life. So diploma has a very good engineering environment. That is, every 6 months you have new semester, new subjects, new syllabus, totally different from the previous semester. So तुम लोग के लिए difficult होगा to grasp the engineering environment easily. And for that, first year is like a kickstart to engineering. Yes. Because वो तुम लोग को ही discipline लाएगा कि ओके एग्जाम्स आ रहे तो इतना प्रिपेयर करना चाहिए, फ्रॉम वेयर टू स्टडी. एंड द मेजर थिंग इज इंजीनियरिंग में मटेरियल्स इजीली नहीं मिलते हैं. सो सिंस फर्स्ट ईयर में होते हो तो तुम लोग के पास ज्यादा प्रेशर होता है टू फाइंड नोट्स, बिकॉज कॉलेज से भी नहीं मिलेगा ना ही मार्केट से मिलेगा. ओके,
ग्रेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट उसने एक चीज़ बताई है कि बच्चों अगर थर्ड ईयर में अगर आपको 90 प्लस लाना है तो फर्स्ट ईयर में 80-85 प्लस टारगेट करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में 85 के ऊपर जाना पड़ेगा, तो ही आप 90 क्रॉस कर पाओगे इन योर थर्ड ईयर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर बेस। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोहम को जैसे 94% आया है एंड ही इज बीन वन ऑफ द टॉपर्स इन हिज कॉलेज एज वेल एज इन हिज क्लास। सो सोहम, ये 94 का जो मैजिकल फिगर है ये आपने कैसे अचीव किया? बाय बैलेंसिंग बिटवीन सो मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि ये एक साल की मेहनत बिल्कुल नहीं है। इट इज अ हार्ड वर्क फॉर एंटायर 3 years ऑफ डिप्लोमा। सो द एड ऑन टू द प्रीवियस क्वेश्चन कि जब फर्स्ट ईयर में यू फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स, तो जो नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम्स आते हैं वो प्री रिक्विजिट होते हैं ऑफ द प्रीवियस सब्जेक्ट, बेस बनता है। राइट। सो इफ यू हैव अ कोर फंडामेंटल आइडिया ऑफ एवरी सब्जेक्ट, तो जब फाइनल ईयर में मेन सब्जेक्ट्स आते हैं तो डिफिकल्ट नहीं होता तुम लोग के लिए ग्रास्प करना इजीली। करेक्ट। तो टॉकिंग अबाउट द फाइनल ईयर थिंग, एट दैट मोमेंट सबको पता ही होगा जो भी वीडियोस देख रहे हैं कि फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स डिग्री में ओनली 10% सीट्स होती है, which is close to just 20 to 24 students per college from entire state of Maharashtra. So for me it was just one slogan that brought me the 94% mark, that is whatever it takes. It took my farting, it took my TV shows, took my screen time, but now I have all of them. So wonderful. So मतलब हार्ड वर्क इन योर फाइनल ईयर, बिकॉज इफ एडमिशन नहीं मिलेगा तो क्या फायदा डिप्लोमा का। परफेक्ट। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया है, वो है कि डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए डिग्री में सिर्फ 10% सीट्स होती है। सो द कंपटीशन इज वेरी हाई कंपेयर टू द 11-12 साइंस स्टूडेंट्स। सेकंड, कि जो थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो बेस होता है वो फर्स्ट और सेकंड ईयर में होता है। तो अगर आपका फर्स्ट सेकंड ईयर स्ट्रांग है तो ही आपको थर्ड ईयर में 90 प्लस का स्कोर आप पा पाओगे। ओके, एंड थर्ड जो पॉइंट उन्होंने बताया इज व्हाटएवर इट टेक्स। दैट्स अ वंडरफुल पॉइंट। देखो, आई डोंट वांट टू स्टडी टिल थक जाऊंगा मैं तब तक पढ़ूंगा, देखता हूं, ट्राई करके देखता हूं, व्हाटएवर इट टेक्स इज द आंसर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the extra courses you have done or you suggest for a diploma student? या कोई extra curricular activities या internship क्या suggest करोगे आप? राइट। सो मेरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा कि सिर्फ सिलेबस से स्टिक मत रहो, बिकॉज वो तुम लोग को डिप्लोमा से पास आउट कराएगा, तुम लोग को एक्सपोजर नहीं देगा मार्केट का। सो इफ यू वांट टू गो डीप इनटू द इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, you have to take courses. There are various courses online available, free में भी है, paid भी है, whatever you might want. And दूसरा कि दूसरे डोमेन्स ट्राई करते रहो, don't just stick to one thing, because in any field like any department there are various other domains जो कॉलेज में नहीं सिखाए। It's your responsibility to go into market, learn it yourself and train yourself कि after a degree और after diploma मैं मार्केट में अच्छे पोजीशन पे होल्ड कर सकूँ खुद को। So talking about the courses, you should look into Coursera, Udemy और even YouTube channels पे बहुत free courses available होते हैं। Correct. So वहाँ से you can gain experience. Perfect. So let's go to the fifth question now. कि ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि जैसे आप एक कंप्यूटर इंजीनियर है, बट बहुत सारे नॉन CSIT इंजीनियर्स भी होते हैं जो कंप्यूटर की जॉब्स के लिए एम करते हैं। तो should non CSIT people also do programming subjects and all? Programming subjects, it is not required for all of the department. Okay. But if you want to go into coding, every department has some part of coding in their field. True. Might it be mechanical, electronics, electrical. Every department has a core of coding, a little yes. bit of coding in almost everything. So you should learn coding at an early stage, not ज़्यादा ही जल्दी, but yes, तुम लोग को at least hands on आ जाना चाहिए कि what will work for me. And if we are talking about only the career point of view, तो if you know coding, तुम लोग का एक higher bandwidth हो जाता है in the market कि you already have experience of the non-IT section as well and also the IT section. तो आपका एक edge मिलता है आपको compared to CSIT students also. Yeah. Wonderful. So let's go to the last question of the day. अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर पढ़ाई करते रहे क्या, 10th में भी हम पढ़ते थे, डिप्लोमा में पढ़ते रहे, कब हम जिएंगे कब? सो हम आपसे, बिकॉज यू आर द राइट एग्जाम्पल फॉर दैट, बिकॉज आपने काफी सारी चीजें बैलेंस करी है। सो हाउ डिड यू बैलेंस बिटवीन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड ऑल्सो टॉप्ड द फाइनल ईयर? ये कैसे आपने बैलेंस किया?
इसके लिए व्यूअर्स को एक चीज बोलना चाहूंगा कि प्रतीक सर ने एक चीज बोली थी व्हाइल आई वाज इन क्लास, जो मेरे को हिट करता है एवरी टाइम आई हियर दिस क्वेश्चन, दैट इज इफ यू नो हाउ टू प्रायोरिटाइज थिंग्स यू कैन एक्सेल इन एनीथिंग। सो एट फॉर मी, मैंने टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छे से सीखा था सर से, बिकॉज आई नो टू विच टास्क टू गिव प्रायोरिटी एट व्हाट टाइम। सो जब मेरा एग्जाम्स होते थे मैं एक्स्ट्रा करिकुलम में नहीं जाता था, बिकॉज एग्जाम वॉज माई एम। एंड गोल तो इंजीनियरिंग बनना ही है, बट एट द सेम टाइम सिर्फ इंजीनियर बनना वॉज नॉट माई एम। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई वेरियस अदर थिंग्स एज वेल। एंड फॉर दैट जैसे ही टाइम मिलता था आई यूज टू गो फॉर माई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, माइट इट बी एक्टिंग और एनीथिंग एल्स एज वेल। एंड दूसरा चीज कि आई वॉन्ट टू शेयर वन एक्सपीरियंस that will like demonstrate you that how I manage my time. So I had my internal exam while I was in diploma, and I also had a show in another city of India. So I gave my exam the morning. I flew to that city. I performed my show, and at the night I flew back to Mumbai and gave my exam the other day. Oh. And I used to study while I was flying for the next exam. So like ऐसे पूरा manage किया था. Wonderful, wonderful. I'll tell you, he is an inspiration to all the students who want to develop themselves, explore themselves, and he's a right example for that. Thank you so much, Soham Dave, for taking out time and educating our audience, and we are really grateful to you. Thank you so much, sir, for bringing me. Thank you so much. So thank you everyone for being a part of today's talk show. So I request everyone to subscribe the channel, like, comment, ताकि हमको पता चले कि हम कैसे टाइप की वीडियोस आपके लिए बनाएं, ताकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाए. So thank you so much. God bless you all.